the entire urban sector, which caters to the 35% of the population. This one day, madam, brings together cheer, applause and recognition for the hard work done during the entire year by lakhs of service providers in the urban sector. The Swachh Bharat mission's iconic decadal journey has indeed redefined urban sanitation and civic responsibility in India. Together, we gather to celebrate the 9th edition of the Swachh Sarvekshan Awards, an embodiment of our collective commitment, teamwork and leapfrogging journey. I also extend a warm welcome to our guiding force, the Honorable Union Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lalji, the Honorable Minister of State, Shri Tokan Sahuji, and it is my privilege to welcome the Honorable Lieutenant Governors from the Union Territories, the Honorable Ministers of Urban Development from the states, mayors, senior officers from the states, cities and their teams. A warm welcome to all development and sector partners, technical institutions, media representatives and all other invited guests. The Swachh Sarvekshan, which began in 2016 with just 73 urban local bodies, has now grown to cover over 4,500 cities in its latest edition. This year, the theme spotlights the mantra of reduce, reuse and recycle. What is important here is that the survey captures actual work on the ground. This team sitting here, city representatives watching us online, have taken charge of handling the nearly 1.6 lakh metric tons of waste that is generated every day by collecting it, transporting it and managing it. Having successfully completed 10 years of Swachh Bharat mission, it is time where we need to plan, not just for the next decade, but also to set the roadmap for the Viksit Bharat by 2047. This year, various important milestones have been covered, including successful internationalization of the reduce, reuse, recycle and circular economy by way of the Jaipur Declaration in the 12th Regional 3R Forum held at Jaipur, which was hosted by India with the UNCRD South Asia Pacific region comprising several nations. Along with this, India is also set to host the World Circular Economy Forum in the year 2026. As a part of the whole of government approach, all central government ministries are working on crucial dimensions of waste to CBG plants, legacy dump site remediation, waste to electricity, plastic waste management, etc. Today is a moment to celebrate the remarkable efforts undertaken by our cities on the ground and the powerful voice of the people that has amplified this movement. Over 14 crore citizens have participated, making this not just a survey, but a true reflection of the collective will and the aspiration of the nation. This is more than an assessment, it is the resounding voice of millions committed to a cleaner India, including women leaders, institutions and private partners. Honorable Madam, with your inspiration and Honorable Prime Minister's vision and direction, we will continue to stay committed to the cause of Swachh Bharat. Once again, I extend a warm welcome to all of you on this momentous occasion. Thousands more who have joined us virtually from across the country, who are united by a common purpose. Let us join hands today to celebrate the spirit of Swachhata and the incredible journey that we continue to build together. Jai Hind. धन्यवाद। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक सुंदर सारंगी राष्ट्रपति महोदया जी को भेंट कर उनका स्वागत करें, जो 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकिल के सिद्धांत पर आधारित है। आइए अब वीडियो के माध्यम से देखते हैं इस सुंदर सारंगी का निर्माण कैसे हुआ है।
स्वच्छ भारत के एक दशक की यात्रा में स्वच्छ सर्वेक्षण ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इस वर्ष की थीम रही रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आइए अब हम इसी से जुड़ी एक वीडियो देखते हैं। स्वच्छता एक ऐसा सपना जिसे संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया था आह्वान और पूरा देश बढ़ चला स्वच्छ भारत के सफर पर। 140 करोड़ भारतीयों ने, हर राज्य, हर शहर, हर गांव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वच्छता की एक नई क्रांति का जन्म हुआ। लेकिन इस बदलाव को मापने और बेहतर बनाने के लिए जरूरत थी एक पारदर्शी और सशक्त मूल्यांकन प्रणाली की, जिसके लिए 2016 में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक स्वच्छता का सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण। 73 शहरों के साथ शुरू हुआ ये सफर पहुंचा 4,589 शहरों तक। स्वच्छता में रचे गए नए इतिहास और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में पूरा देश आया एक साथ। हर वर्ष शहरों में स्वच्छता की जरूरतों के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम्स तय की गई। 2016 में मेजरिंग फिजिकल प्रोग्रेस, 2017 में मेजरिंग आउटपुट्स, 2018 में मेजरिंग आउटकम्स, 2019 में सस्टेनिंग स्वच्छता, 2020 में इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्वच्छता, 2021 में इंटीग्रेटेड अप्रोच, 2022 में पीपल फर्स्ट, 2023 में वेस्ट टू वेल्थ और 2024-25 में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की थीम पर आगे बढ़ते हुए 4,589 शहर, 3,000 से अधिक सर्वेयर्स और 45 दिनों तक चले ऑन फील्ड सर्वे के साथ संपन्न हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, जिसमें 10 प्रभावी इंडिकेटर्स के आधार पर अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के बीच सर्वेक्षण की प्रक्रिया को 4 चरणों में पूरा किया गया। चरण 1 और 2 में 1.5 करोड़ लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से असेसमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। चरण 3 में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का असेसमेंट किया गया और चरण 4 में 3,000 से अधिक असेसर्स ने देश के हर वार्ड में 45 दिनों तक ऑन ग्राउंड असेसमेंट किया। इस बार शुरू की गई एक अनोखी पहल, सुपर स्वच्छ लीग। इसमें शामिल हो रहे हैं वो शहर जो 2021 से 2023 तक टॉप 3 में रहे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वेस्ट टू वेल्थ, क्लीनलीनेस टारगेटेड यूनिट्स, स्कूल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे हाई फुटफॉल वाली जगहों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 ने इंक्लूजन, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, इंप्रूव्ड रियल एस्टेट वैल्यू और इकोनॉमी को बढ़ावा देकर शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया है, उनकी वैल्यू को बढ़ाया है। स्वच्छता किसी भी शहर में विकास का पहला मापदंड है, लोगों की संतुष्टि का दर्पण है और स्वच्छ सर्वेक्षण वो असेसमेंट टूल है जिसने 14 करोड़ से अधिक लोगों की आवाज बनकर स्वच्छता के नए आसमानों को छुआ है। भारत को स्वच्छ भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ा रहा है। सुपर स्वच्छ लीग इस वर्ष इंट्रोड्यूस की गई एक स्पेशल कैटेगरी है, वो शहर जो न ही सिर्फ स्वच्छ हैं बल्कि सुपर स्वच्छ हैं। आइए मिलकर इसी पर आधारित अब एक वीडियो देखें। स्वच्छ भारत मिशन के दशक में भारत ने एक बदलाव देखा है, स्वच्छ होते शहरों को देखा है। 140 करोड़ लोगों में स्वच्छता का स्वभाव, संस्कार देखा है। अब स्वच्छता की रीत चल रही है। शहर लिटर फ्री, घर घर से कचरा इकट्ठा हो रहा है। वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, बेहतर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज का जाल बिछ रहा है। शौचालय अब स्मार्ट बन गए हैं। लैंडफिल्स की जगह सुंदर पार्क दिखाई दे रहे हैं।
शहर ODF से ODF प्लस, ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। नई नई गार्बेज फ्री सिटीज बन रही हैं। वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वंडर से कचरे को नया प्रारूप मिल रहा है। अब महिलाएं स्वच्छता का नेतृत्व कर रही हैं। सफाई मित्रों को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ने स्वच्छता का नजरिया बदला है। पिछले 1 दशक में हर शहर स्वच्छता की राह पर चल रहा है। इनमें भी जिन शहरों ने पहुंचा दिया है स्वच्छता को नई ऊंचाइयों पर, वही हैं सुपर स्वच्छ शहर। और जिन सुपर स्वच्छ शहरों ने स्वच्छता में बढ़ाया देश का मान, अब होगा उनका सम्मान, जिसके लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत हो रही है। एक ऐसी लीग जिसका हिस्सा होंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से 2023 के बीच टॉप 3 में रहने वाले शहर। ये केवल स्वच्छ नहीं, सुपर स्वच्छ शहर हैं, जिन्हें लीग में बने रहने के लिए निरंतर स्वच्छता में अपने प्रदर्शन को बनाए रखना होगा। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से अनुरोध करूंगी कि वे इन शहरों को अवार्ड देने की कृपा करें। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज की पहली श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। अनुरोध करते हैं सबसे पहले कि इंदौर की टीम कृपया मंच पर पधारे और करतल ध्वनि से बधाई देते हैं। सुपर स्वच्छ लीग की पहली श्रेणी, सबसे पहला नाम इंदौर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पुनः जोरदार तालियां, शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। अब हम सूरत की टीम से निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर पधारें। सूरत, सूरत की टीम से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके बाद नवी मुंबई की टीम से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। नवी मुंबई, पुनः करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं नवी मुंबई की टीम का। बहुत बहुत अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके बाद निवेदन है विजयवाड़ा की टीम से कि कृपया मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत है विजयवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। लीग की इस दूसरी श्रेणी में 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। तो आइए अनुरोध करते हैं कि नोएडा की टीम कृपया मंच पर पधारे और इस पुरस्कार को ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां सभा की ओर से नोएडा।
इनके बाद निवेदन है, चंडीगढ़ की टीम कृपया मंच पर पधारे। चंडीगढ़, बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं, करतल ध्वनि से अभिनंदन और शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। ये दूसरी श्रेणी है जिनमें 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। इनके बाद हम निमंत्रण देते हैं मैसूरू को। मैसूरू की टीम कृपया मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन। अब निवेदन है, उज्जैन की टीम कृपया मंच पर पधारे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, ढेर सारी शुभकामनाएं। उज्जैन, इनके बाद निवेदन है गांधीनगर की टीम से कि कृपया आप मंच पर पधारें। जोरदार तालियां गांधीनगर की टीम के लिए। गांधीनगर, कांग्रेचुलेशन। Many congratulations to all the awardees, to all the winners. गुंटूर की टीम से निवेदन मंच पर पधारे। गुंटूर, शुभकामनाएं। आइए करतल ध्वनि से पुनः ढेर सारी बधाई देते हैं इन सभी विजेताओं को। लीग की तीसरी श्रेणी, थर्ड कैटेगरी में 50,000 से लेकर 3 लाख तक जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। तो आइए अब हम आमंत्रित करते हैं न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को। कृपया मंच पर पधारें। ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एनडीएमसी टीम के लिए। अब बारी है तिरुपति की टीम। तिरुपति, आपसे निवेदन मंच पर आप कृपया पधारें और शुभकामनाएं चारों तरफ से बरस रही हैं। कांग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सभा की ओर से। अंबिकापुर, टीम अंबिकापुर से निवेदन कृपया मंच पर पधारें और पुनः करतल ध्वनि इन सभी के लिए। शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इनके बाद आमंत्रित करते हैं लोनावला की टीम को। बहुत बहुत स्वागत मंच पर लोनावला। Congratulations.
आगे बढ़ते हुए लीग की जो चौथी श्रेणी है, फोर्थ कैटेगरी, उसमें 20,000 से लेकर 50,000 तक की जनसंख्या वाले शहर हैं। हम सर्वप्रथम निवेदन करते हैं वीटा, टीम वीटा से कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां इनके लिए। शुभकामनाएं दे रहे हैं हम सब मिलकर इन सभी विजेताओं को, और करतल ध्वनि हम सभी की ओर से होनी चाहिए। ये सभागार गूंज उठना चाहिए तालियों की गड़गड़ाहट से। सासवत, टीम सासवत से निवेदन है मंच पर पधारें। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पुनः जोरदार तालियां सासवत और उनकी पूरी टीम के लिए। आइए आमंत्रित करते हैं देवलाली प्रवारा। बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं हमारी ओर से देवलाली प्रवारा। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डूंगरपुर की टीम से निवेदन मंच पर पधारें। डूंगरपुर के लिए जोरदार तालियां सभी की ओर से, सभा की ओर से जोरदार तालियां विजेताओं के लिए। पुनः जोरदार तालियां सभा की ओर से। शुभकामनाएं देते हैं सभी विजेताओं को। लीग की पंचम श्रेणी में यानी कि फिफ्थ कैटेगरी में 20,000 से कम पॉपुलेशन वाले शहर हैं। आइए अनुरोध करते हैं सबसे पहले पंचगणी की टीम से कि कृपया मंच पर पधारें। जोरदार तालियां पंचगणी के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंचगणी। इनके बाद पाटन से निवेदन है टीम मेंबर्स से कि कृपया पधारें। पाटन, बहुत बहुत स्वागत है। आइए मंच पर पधारें और ये जो स्पेशल अवार्ड है उसे ग्रहण करें। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। कांग्रेचुलेशंस। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आइए अब आमंत्रित करते हैं पन्हला, टीम पन्हला को कृपया मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं सभी की ओर से। तालियां जोरदार हमारे सभी विजेताओं के लिए। कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विजेताओं के लिए। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। अब निवेदन है विश्रामपुर से, टीम कृपया मंच पर पधारें। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विश्रामपुर पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई। और बुधनी, अब निवेदन है टीम बुधनी कृपया मंच पर पधारें और ये पुरस्कार ग्रहण करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाई।
Many congratulations to all the winners and thank you, madam. Thank you, President Madam, for presenting these awards. जो पहली कैटेगरी के अवार्ड्स थे वो हमने प्रेजेंट किए हैं. हम आशा करते हैं कि ये शहर लाइट हाउस सिटीज बनकर नेतृत्व करेंगे और उच्चतम स्तर की स्वच्छता को बनाए रखेंगे. एक बार पुनः सभी के लिए करतल ध्वनि हम सभी की ओर से जोरदार तालियां. अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया इस समारोह को संबोधित करें और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की इस अद्भुत यात्रा पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें. राष्ट्रपति महोदया, मैं सर्वप्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह के इस 9वें संस्करण में उपस्थित आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. आपकी गरिमा में उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि स्वच्छता का ये मिशन और सर्वेक्षण दोनों ही हमारी सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. साथियों, आज हम स्वच्छता की इस यात्रा के 11वें वर्ष में खड़े हैं. आज स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार समारोह ये 9वां है. आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति एक अलग अलग जगी है और इस अलग को जगाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है. मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आज़ादी के बाद ये पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से ये विषय उठाया था. इसमें दो बातें थी. एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए. देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है. और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं. हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे. उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आज़ादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है. मैं इसके लिए आज यहाँ उपस्थित विभिन्न शहरी निकायों के हमारे साथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विशेष रूप से इस मिशन को सफल बनाने वाले हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं. माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2014 से अब तक स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की हैं और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है. आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया जा चुका है. साथ ही कई शहरी स्थानीय निकायों ने ODF से आगे बढ़कर के ODF++ और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है. 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ODF का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है. माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है. इसी दृष्टि से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 से कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया. आज देश भर में 80% ठोस कचरे का प्रतिदिन प्रसंस्करण हो रहा है और घर घर कचरा संग्रहण का कवरेज 98% तक पहुंच गया है. आज हमारे शहर 5 और 7 स्टार
गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारे शहरों में कचरे के सही निस्तारण के साथ साथ उसका पुनः उपयोग, उन्हें रिसाइकिल भी किया जा रहा है। आज कचरे का उपयोग कंपोस्ट खाद, बायोगैस उत्पादन में किया जा रहा है। उपयोग किए गए पानी को सीवेज ट्रीटमेंट के बाद कृषि और उद्योगों में फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही निर्माण और विध्वंस से निकले मलबे को सीमेंटेड ईंटों और पेवर ब्लॉक्स में बदला जा रहा है। इस तरह से कचरे को कम कर उसे सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो वेस्ट है वो भी बेस्ट है। आज हम इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं। हाल ही में अपनाया गया जयपुर डिकेडल डिक्लेरेशन सतत विकास कार्यों की दिशा में एक अहम कदम है। यह लीनियर इकोनॉमी में अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों को पहचानते हुए सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम आभारी हैं आपने 2022 और 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी मौजूदगी में 2 बार हमारा मनोबल बढ़ाया। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आपने हमें अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और व्यवसायों को शामिल करने का सुझाव दिया था। वहीं 2022 में अपशिष्ट को स्रोत मानकर अलग अलग करने की आदत को बढ़ावा देने सहित हरा गीला सूखा नीला का नारा अपनाने का सुझाव दिया था। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके दोनों महत्वपूर्ण सुझाव को अपने अभियानों का हिस्सा बनाया है। सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों को सम्मानित किया जाएगा। 2016 से चल रहा यह सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक रैंकिंग कार्यक्रम बन चुका है। हम आपको ये बताते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि जहां पहले सर्वेक्षण में 73 शहर शामिल हुए थे, यानी 2016 में, वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 4500 से भी ज्यादा शहरों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन तक पहुंच गई है। इसमें आवासीय, व्यावसायिक क्षेत्र, सीवेज प्लांट, लैंडफिल, सार्वजनिक शौचालय और पर्यटन स्थलों का निरीक्षण शामिल है। 2024 का थीम शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर केंद्रित है। इस बार सर्वेक्षण में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोगों ने आमने सामने बातचीत, स्वच्छता ऐप, माईगॉव सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसमें भाग लिया। हमें खुशी है कि नागरिकों ने सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय महोदया, इस बार सर्वेक्षण में विशेष रूप से सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत उन शहरों को मान्यता देने के लिए की गई है जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें वे शहर शामिल हैं जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में अपनी जनसंख्या श्रेणी के शीर्ष 20% में शामिल हैं। कुल 23 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 74 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जो 75 शहरों को मिले हैं। मैं इन सभी शहरों को बधाई देता हूं। इस वर्ष से जो प्रथम श्रेणी में आने वाले, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस वर्ष में आने वाले सब शहरों को भी अगले वर्ष की सूची में सुपर स्वच्छ लीग में ही जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उन लीग्स की अपनी प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में लीग के अंदर जो शहर पीछे रह जाएंगे उनको उस लीग से बाहर कर दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे इस वर्ष से शुरू की गई एक नई पहल से भी आपको अवगत कराते हुए खुशी हो रही है और वो पहल है सबको साथ लेकर चलने की, अर्थात अंत्योदय की। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा है, अच्छा है। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा भी है और अच्छा भी है। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे लाने में हम अपना सहयोग दें। इस प्रकार मंत्रालय की ओर से इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा
आज हम इस मंच से कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर हैं वह सब अपने राज्य में एक एक औसत प्रदर्शन करने वाले शहर को अडॉप्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और बेहतरीन शहर बनने के लिए उसका हाथ थामेंगे। इसके तहत 75 गुड परफॉर्मिंग शहर 75 लो परफॉर्मिंग शहरों को चुनेंगे। जिस तरह ईच वन टीच वन कहा जाता है, हमारा मंत्र है ईच वन क्लीन वन। हमने 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाकर कूड़े के पहाड़ खत्म करने का लक्ष्य रखा था। आज लगभग आधे से अधिक अर्थात 56% तक कचरे को रीमीडिएट कर 50% से ज्यादा भूमि खाली कराई है और जीरो इन पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, डंप पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि जितने बड़े शहर हैं वहाँ लेगेसी वेस्ट खत्म करना उतनी ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में हम उन शहरों पर फोकस वेस्ट प्रोसेसिंग पर है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम 1 साल के चुनौतीपूर्ण स्पेशल प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत आगामी 15 अगस्त 2025 से हम 1 साल के लिए एक्सेलरेटेड डंप साइट रीमेडिएशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लेगेसी वेस्ट तेजी से कम होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में 2047 का विकसित भारत स्वच्छ और स्वस्थ दोनों होगा। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करता हूं और आज पुरस्कृत हुए सभी शहरों और लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर चाहे छोटे हों या बड़े, लक्ष्य सबका एक है, स्वच्छता का, स्वच्छ भारत का। आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में शहरों के प्रयास। हर रंग की अपनी कहानी होती है, हर कूंची की अपनी एक पहचान। जब मिलते हैं ये अलग अलग रंग, तब बनती है स्वच्छ भारत की एक महान पहचान। कभी रेलवे स्टेशन की सफाई में नजर आती है ये कोशिश, तो कभी झुग्गियों की गलियों में खिलती है हरियाली। कहीं कूड़े से बनती है ऊर्जा, तो कहीं कूड़े को मिलता है नया जीवन। कहीं युवा लाते हैं स्वच्छता में क्रांति, तो कहीं नारी करती हैं बदलाव की अगुवाई। मंदिरों से उठती अगरबत्तियां, कूड़े से बनती खुशबू की सच्चाई। जहां पहले हाथ जाते थे गंदगी में, अब मशीनें चलती हैं सम्मान से।
बच्चे रंगते हैं दीवारों को सपनों से और तटों पर लहराता है स्वच्छता का परचम। पुराना शहर भी संजोया जाता है, नया शहर भी चमकता है। स्वच्छता ने दोनों को एक ही रंग में रंगा है, साथ सौंदर्य और संकल्प का रंग। कहीं कचरे से मिल रहा रोजगार तो कहीं टेक्नोलॉजी ने बदला सूरत-ए-हाल। सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी बनती स्वच्छता का प्रमाण है, क्योंकि सफाई अब एक आदत बन चुकी है। हर शहर की अपनी एक कहानी है, अपना रंग, अपनी रवानी है, पर लक्ष्य सबका एक ही है, स्वच्छता, सशक्तता और सम्मान। यह है स्वच्छ भारत की असली तस्वीर, जहां हर रंग है जरूरी, हर प्रयास है अनमोल। जब मिलते हैं स्वच्छता के ये अनगिनत रंग, तब बनती है एक स्वच्छ, सुंदर और संपन्न भारत की तस्वीर। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है, इतना भर नहीं है। इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। और ये कहानी है उन विनिंग सिटीज की, जिन्होंने ये कर दिखाया कि रंग भले अनेक हैं, पर लक्ष्य सबका एक है, स्वच्छ भारत, संपन्न भारत। स्वच्छ भारत, संपन्न भारत। आइए अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के रिजल्ट्स डैशबोर्ड को अगली वीडियो के माध्यम से। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से अनुरोध करती हूं कि वे स्वच्छ शहर पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वच्छ शहरों की कैटेगरी में, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है अहमदाबाद ने। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं टीम अहमदाबाद का। पुनः करतल ध्वनि अहमदाबाद के लिए प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उन शहरों में। दूसरा स्थान प्राप्त किया है भोपाल ने। पुनः जोरदार तालियां भोपाल के लिए। बहुत बहुत बधाई सभी विजेताओं को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बारी आती है कि तृतीय स्थान पर जिनका नाम है वो अनाउंस करें। लखनऊ, जोरदार तालियां इनके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ शहर जिनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच है, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मीरा भयंदर ने। जोरदार तालियां इनके लिए।
ये कैटेगरी है उन स्वच्छ शहरों की जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच है। प्रथम स्थान मीरा भयंदर। ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर ने। जोरदार तालियां बिलासपुर के लिए। पुनः गत्तल ध्वनि सभी विजेताओं के लिए। हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, सभा की ओर से बहुत बहुत बधाई। तृतीय स्थान प्राप्त किया है जमशेदपुर ने। जोरदार तालियां जमशेदपुर के लिए। इनके बाद वो स्वच्छ शहर हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 3 लाख तक की है। तो आइए, जो प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है देवास। जोरदार तालियां टीम देवास के लिए, बहुत बहुत बधाई। 50,000 से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या जिनकी है वो स्वच्छ शहर। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है करहाड़ ने। जोरदार तालियां। करहाड़ ढेर सारी बधाई पुनः सभी की ओर से। करतल ध्वनि सभी विजेताओं के लिए। तृतीय स्थान प्राप्त किया है करनाल ने। पुनः जोरदार तालियां सभी के लिए, विजेताओं के लिए। सभा की ओर से करतल ध्वनि हमारे सभी विजेताओं के लिए। ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं, सभी अवॉर्डीज के लिए। स्वच्छ शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से 50,000 तक है। प्रथम स्थान पाया है पणजी ने। जोरदार तालियां पणजी के लिए। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।